So now moving on to the main aspect, which is to build up a resume. First of all, if I talk about how do we go with the contents or the order of the resumes, first of all, make sure that there is name, address, and your contact details, which are basically visible out there. Then we write down our career objective, educational qualifications, skill sets, experience, internships, projects, achievements, interests, and hobbies. So now I'll be spending maybe few minutes on each topic in order to help you out to build up a CV for yourself. So the first thing is your name. So one thing is whenever you're preparing your CV, make sure that your name gets highlighted. If suppose I'm preparing my CV in which all the content in my CV is supposedly in font size 14, so my name has to be in font size 16 so that my name gets highlighted in my CV. Uska font size chota nahi rakhna hai. Done. Next thing is you need to mention your address, where you are staying, where they can contact you. Next is you have to mention your phone numbers, preferably जो phone number आप use करते हो regularly, give that number only, give your own personal mobile number over there. Do not give landline numbers or so. After that, another thing is you need to mention your email address. And the last thing is your LinkedIn profile. I'm hoping that all of you have a LinkedIn profile. In case you do not have a LinkedIn profile, please build up a LinkedIn profile for yourself, because this is the need of the hour. Every LinkedIn is a platform where it's a network of group of professionals out there. Your LinkedIn presence is utmost important. A lot of number of times what happens is they do not go through even your resume, they just go and look for you on your LinkedIn profile, and they look what have you done, what activities you are involved into. So they just go directly to your LinkedIn profile and they look forward to the same. अब इसमें क्या ऐड किया जा सकता है? और सपोज आप लोग मार्केटिंग में से हैं और आपकी मार्केटिंग के होने के कारण यू हैव क्रिएटेड आउट अ ब्लॉग पेज फॉर योर सेल्फ, या कई बार हम इंस्टाग्राम पेज बना देते हैं जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. इफ इट इज रिलेटेड, अगर आपका रिलेटेड है, ओनली देन यू कैन ऐड दोज वेबसाइट नेम ऑफ योर्स जहाँ पे आप ब्लॉग्स डाल रहे हो, या आप अपना इंस्टाग्राम पेज मेंशन कर सकते हो. Otherwise, apart from LinkedIn profile, you should not mention any of the social media presence of yours. Done. So now moving on to the tips. First of all, first name and then last name. If my name is Palak Kohli, I'll be writing Palak and then I'll be writing Kohli. I won't be mentioning it Kohli Palak or something. So that looks unprofessional. अगर आपका कुछ you have some middle name that if you in case you want to mention it, it is totally optional. But वो कई बार क्या होता है that occupies a lot of space on your resume. So in order to avoid that, it is better कि आप सिर्फ अपना first name और last name mention करें. नेक्स्ट थिंग इज आपको अपना फोन नंबर देना है जिसपे आप अवेलेबल हो. नेक्स्ट थिंग इज आपको अपनी ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए दैट इज योर फर्स्ट नेम योर लास्ट नेम @gmail.com. If all of you are going to start your professional career, I would request you all to create a separate email ID for yourself to interact with the in order to receive all those separate mails of jobs and everything out there. उसके बाद अपनी emails properly regularly check करो ताकि ये ना हो कि someone has sent you an email regarding a job and you're not looking forward to it. प्रोफेशनल समरी कैसे करते हैं? प्रोफेशनल समरी जो होनी चाहिए वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए. दैट इज फॉर लाइक 3 to 4 लाइंस, दैट्स इट. जिसमें कि इट शुड शो कि आपका करियर गोल क्या है दैट यू वांट टू अचीव एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर करियर. लाइक करियर ग्रोथ क्या चाहते हो करियर में, क्या व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर करियर. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखो. कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन कुछ होता है, या जहाँ उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में दे हैव गिवन यू कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको टेलर कर लो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन कि व्हाट इज योर करियर गोल दैट यू वांट टू अचीव एंड सो ऑन. Moving on to the next, here are a few examples. Like you can talk about, I'm an enthusiastic and hardworking individual who is, if in case you are a fresher who wants to go into MBA, who wants to get an entry level sales position, and then you can talk about the skill sets that you have. Apart from this, if in case you want to apply for a startup organization के साथ अगर आपको जाना है, you can talk about growth oriented organization. या आप बात कर सकते हो कि अगर आपको किसी डायनामिक या प्रोग्रेसिव ऑलरेडी एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, यू कैन श्योरली गो अहेड एंड यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस एज अ प्रोफेशनल समरी. प्रोफाइल पिक्चर की बात करें, मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट इज टोटली प्रोफेशनल. जो आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, आई एम होपिंग दैट आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर भी प्रोफेशनल है.
सेम प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अटैच करो ताकि ईजी हो जाता है लिंक्डइन पे आपको सर्च करना और आपको फाइंड आउट करना ऑन लिंक्डइन। अनदर थिंग इज बैकग्राउंड जो है वो प्लेन होना चाहिए। आप नॉर्मली शर्ट और टाई डाल के, गर्ल्स यू कैन वेयर शर्ट एंड यू कैन कैरी अ स्कार्फ अराउंड योर नेक एंड प्रोफेशनली स्ट्रेट लुकिंग पासपोर्ट साइज इमेज जो है दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। नो पाउट्स, नो साइड पोजेस। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी शादी पे गए हुए हो, आपने प्रॉपर ब्लेजर एंड ऑल डाला हुआ है और आप उस शादी की पिक्चर को यहाँ पे एज अ यूज कर रहे हो सीवी पे। प्लीज डोंट डू दिस, गेट योरसेल्फ क्लिक्ड फ्रॉम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, राइट? Another thing is you should dress up professionally and LinkedIn profile के साथ you need to correspond your image. Moving on to the next thing, which is there is your work experience. So now talking about your work experience हम हमेशा reverse order में mention करते हैं. That is सबसे recent work experience सबसे पहले. Supposedly अगर recently मैं organization के साथ काम कर रही हूँ Sunstone के साथ, I'll be mentioning that in my resume. उसके बाद मैंने नेक्स्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया था, इमीडिएट नेक्स्ट उसके बारे में, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विद व्हिच आई हैव वर्कड. So this is how I'll be mentioning my work experience. It should be in a reverse order. आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, क्या आपकी जॉब पोजीशन थी, कितनी देर के लिए आपने काम करा, क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहे थे वहां पे. दिस इज व्हाट यू विल बी मेंशनिंग आउट हियर. जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्राफ्ट करते हो, जो भी आपने काम करा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट ऑल वर्क एक्सपोजर यू गॉट, मेंशन दैट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स और इफेक्टिवली उनको मेंशन करना है. कई बार क्या होता है, व्हाट स्मार्टनेस यू कैन यूज इज, जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में व्हाट एवर दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आप वही सब चीजें ऐड करके अपने सीवी को यू कैन अलाउ योर सीवी टू शोकेस द सेम थिंग. अब बहुत सब लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, पर उनके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, 3 मंथ 6 मंथ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, या कुछ भी करा है आपने. सो यू कैन अगेन मेंशन कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करी थी, कितनी देर के लिए करी थी, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या रोल्स थे. अगर आप में से किसी ने इंटर्नशिप भी नहीं करी हुई है, आपने कुछ अपने ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ एमबीए इफ यू डन एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो हमें प्रोजेक्ट सबमिशंस मिलती हैं, आप प्लीज उस प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करिए, बट डू मेंशन समथिंग ताकि उनको पता चले कि यू हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ये नहीं है कि आपने सिर्फ बुकिश नॉलेज है आपको. सो दिस इज वेयर यू नीड टू मेंशन दैट थिंग क्लियरली. So now moving on to your education, it also has to come into the reverse order. अगर सपोज मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, बहुत बार क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने +2 सेम स्कूल से करी है तो हम सीधा +2 लिख देते हैं. नो, 10th भी मेंशन करनी है, 12th भी, ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन. अब हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वी हैव डन सम सॉर्ट ऑफ अ डिप्लोमा आल्सो, ग्रेजुएशन करने से पहले, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में, या कई बार आफ्टर +2 वी हैव डन सम सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा आल्सो. तो अगर आपने +2 के बाद करा है तो 10th 12th फिर डिप्लोमा फिर ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन. अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में डिप्लोमा करा है तो वो मेंशन कर सकते हो आप. ठीक है? Okay, so this is how you'll be mentioning your educational qualification, which I have been referring to previously. Moving on to the next slide, which is there is talking about your achievements, certifications, and achievements and certifications. अब अगर आप फ्रेशर हो और आपके सीवी में अगर आप जब बनाते हो आपको लगता है कि मेरे पास कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है डालने के लिए, एक तो आप कुछ भी आपने प्रोजेक्ट करा आप वो डाल दो अगर आपने कुछ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है. उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, बहुत सब प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है. अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हो आप पेड कोर्सेज कर लो. बहुत सब फ्री कोर्सेज भी होते हैं विच कैन हेल्प यू टू गेट द सर्टिफिकेट्स. कुछ कोर्सेज में आपको पे करना पड़ता है, ओनली देन यू गेट अ सर्टिफिकेट. तो अकॉर्डिंग टू योर करियर गोल्स, इन विच फील्ड यू हैव इंटरेस्ट इन टू, सपोज अगर मैं मार्केटिंग में हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो कुछ भी इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऑनलाइन सर्च करो, जो आपको रेलेवेंट कोर्स लगता है वो करो और अपने ये सर्टिफिकेशंस डालो. डू नॉट थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग मनी ओवर हियर, मतलब 400-500 में यू कैन इजिली डू कोर्सेज. दिस विल हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब और आपके सीवी को वो स्टैंड आउट करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो सर्टिफिकेशंस जो है वो आपके इस सीवी में बहुत सब इट विल हेल्प यू टू fill in the areas in your CVs. So I would request all those who are freshers and otherwise also, please go ahead and do some online courses or certifications. There are a lot of courses available. There are a lot of websites which are there using which you can still get certificates. कुछ certificates होते हैं वो बहुत short duration के होते हैं, maybe for few hours only, but this helps you to fill in your gaps in your CV and also to add a new heading and make your CV to be different from the rest of the people out there.
कुछ भी आपको स्कॉलरशिप्स मिला है, अगर आपको कुछ भी डिस्टिंक्शन मिला है ग्रेजुएशन में, आप वो डाल दो, कुछ भी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, कुछ आपको अवार्ड्स मिले हैं, कुछ भी, यू कैन ऐड दोज इनटू इट। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट, अगर आपने सपोज कोई वेबिनार्स अटेंड करे हैं, कुछ सेमिनार्स थी, कुछ वर्कशॉप्स थी, उसका अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है, यू कैन श्योरली ऐड दैट ऑल्सो इनटू इट, कि आपने सो एंड सो सेमिनार और वर्कशॉप आपने अटेंड करी थी, यू कैन गो हेड एंड यू कैन मेंशन दिस थिंग ऑल्सो इनटू इट। Along with this, you should mention how to mention a certification. जैसे यहाँ पे we have created a separate heading for professional certificates. In this you can mention कि you have done supposedly in data sciences अगर आपने करा है, या supposedly digital marketing में आपने करा है, एक ऑनलाइन कोर्स था और कौन से प्लेटफॉर्म से करा है। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो भी दे आर रनिंग वेरियस कोर्सेज विच कैन बी डन ऑनलाइन। गो हैड एंड सर्च आउट द सेम, और आप ये कोर्सेज कर सकते हो, दिस गिव यू सर्टिफिकेट्स, और आप उसको इस तरह से यू कैन मेंशन ईयर कौन से में करा, 2016 में करा है, 2020 में करा है, 2019 में करा है, 2021 में करा है, कब करा था, कौन से प्लेटफॉर्म से करा था, दिस ऑल्सो शुड बी मेंशन। दिस इज हाउ यू मेंशन योर सर्टिफिकेट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द स्किल सेट्स। जब मैं बात कर रही थी कि कीवर्ड के बेसिस पे आपके सीवीज किस तरह से सिलेक्ट होते हैं, अगर मैं कुछ भी ऑनलाइन जो Indeed.com है, Shine.com है, उसमें आप अपने सीवीज अपलोड करते हो, आपको उसके बेसिस पे यू आर रिसीविंग ईमेल्स और समथिंग एवरी डे, दैट इज नॉट कि वो आपका, दे आर सर्चिंग आउट फॉर योर सीवी और योर नेम ऑन Naukri.com या LinkedIn या ऑन वेरियस एरियाज। The skills that you mentioned, they are just typing in those words. Supposedly, if they have the opening of the financial analyst, they'll be typing in something words related to that. Everyone, please mute yourself. So they'll be typing in those keywords and they'll be looking forward to you. Financial analyst है, marketing के related है, वो सब keywords डालेंगे। अगर आपके CV में वो keywords डाला हुआ होगा, your CV will get selected on the basis of the same. Done. So what are hard skills? There are two skills that we normally mention. बहुत सब लोग they do not mention all this. दो skills हैं, एक है hard skills और एक है soft skills. I'll be taking up your doubts by the end of the session if you people won't mind, because let me just complete this PPT first, right? I'll be taking up all your queries. I'll be opening the house for questions. You can surely ask questions during that time. हार्ड स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो दैट इज रिलेटेड टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज के रिलेटेड। सॉफ्ट स्किल्स आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। So this is where you need to mention both these skills in your CVs. Please mention both the skills. MBAs के लिए तो it's very much important कि आप soft skills लिखो। Hard skills और soft skills के here are few examples in case you want to click picture or something, you want some help related to कि मैं CV में क्या डालूं, you can surely take help of these things. आप सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे यू कैन फॉर MBA पर्पसेस यू कैन ऐड दीज थिंग्स। हार्ड स्किल्स के बेसिस पे यू कैन ऐड समथिंग सिमिलर टू इट। मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी आप कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट और समथिंग, ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऐड इन हार्ड स्किल्स ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज योर इंटरेस्ट और हॉबीज। अब इंटरेस्ट और हॉबीज जो है, मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग इट इन अ प्रोफेशनल मैनर। जो भी आप इंटरेस्ट और हॉबीज ऐड कर रहे हो, कुछ भी रैंडमली इंटरेस्ट और हॉबीज ऐड करने की, डू नॉट ऐड रैंडम थिंग्स इन योर सीवी, जैसे कि हॉबी है स्लीपिंग एंड ऑल ऑफ इट। दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. Some of the people, what do they write is they like gossiping, they like chit chat or something. Please do not write this irrelevant stuff, क्योंकि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं related to your hobbies and your interests. सिर्फ क्योंकि उसमें स्पेस भरनी है, डू नॉट राइट आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है विच नॉवल हैव यू रेड लास्ट, आप ब्लैंक होते हो, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हो, आपको पता ही नहीं होता, आप कुछ भी रैंडम बुक का नाम ले लेते हो, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप, सो व्हाट हैव यू रेड इन दैट पर्टिकुलर बुक, आप बिल्कुल ब्लैंक। सो दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। या तो लिखने से पहले एटलीस्ट रीड वन बुक कि क्या मैंने कौन सी बुक आई विल बी स्पीकिंग अप ओवर देयर, और मैं मैंने क्या पढ़ा है, यू शुड नो अबाउट दिस इफ यू आर राइटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सो अदरवाइज अब इंटरेस्ट और हॉबीज किस लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सब, अगर आप बिग कॉर्पोरेट हाउसेज एंड अदरवाइज ऑल्सो इफ यू ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग वहां पे ना कॉम्पिटिशन कंडक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द वर्किंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड ऑल्सो टू हेल्प कि आपस में एम्प्लॉयज जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें।
तो उस केस में कंपनी जो है वो ये सब चीजें देखती है कि जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो डज दिस पर्सन फिट इन ओवर देयर। ये नहीं कि सिर्फ ये बंदा पढ़ता ही रहता है, ही जस्ट समवन हु इज इनटू टू बुकिश नॉलेज, इसको अदरवाइज ही डजंट नो व्हाट ही हैज इंटरेस्ट इनटू, इसको कुछ नहीं पता अपने बारे में। So this is very much important area. Please do mention this because lot of organizations they look forward to this particular aspect also. उसके बाद है now what hobbies and interests can we include in our series. अगर आपने कुछ भी during this pandemic if you have done any sort of volunteer work आप वो डाल सकते हो। अगर आपको social skills हैं, आप कुछ भी किसी भी organization के साथ जुड़े हुए हो, आप you can add on to the same। अगर आपके पास कोई क्लब मेंबरशिप है आप वो कर सकते हो। बहुत सब लोगों को दे आर इनटू फोटोग्राफी, दे आर वेरी गुड अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज, आर गुड इनटू फोटोग्राफी, सम आर गुड इनटू पेंटिंग, some are good into singing, and some are good in writing poems or so, some are good who are good with learning languages, maybe आप foreign languages you're learning French or so। अगर आपका वो कुछ हॉबी है आप लोगों का, प्लीज गो ahead and talk about it। अगर आपको मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, अदरवाइज योर फील्ड इज समथिंग एल्स, अगर आपको इंटरेस्ट है, दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन गो अहेड एंड डू। अगर आपको रिसर्च करने में यू आर इंटरेस्टेड और समथिंग आपने करी है, एक्चुअली जेन्युइनली कुछ रिसर्च करा है, ओनली देन, अदरवाइज प्लीज डू नॉट ऐड दीज थिंग्स इनटू योर इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज।